Hello everyone. So we have started our second last unit that is all about the multimedia in Android जो हम लोग ऐप बनाने वाले हैं Android में. So how the data is going to be stored in our Android application या फिर इंटेंट फिल्टर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग ने लास्ट टॉपिक में देखा लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं आपण. So that is all about the multimedia faces in Android and you need to be ensure that how the activity is going through all these phases. Okay, so without wasting our precious time, directly back to the come to the point, our next topic which we are going to see in this today's lecture, which is all about the activity life cycle in Android. ठीक है, Android की activity life cycle मतलब life cycle is all about उसका born and उसकी death. ठीक है, वो कब जिंदा हो रही है और कब मर रही है. The phase in between his born period and his death period is all about the activity life cycle. Okay, so let's start with the concept of activity life cycle in Android Studio. Okay, so see here, in Android an activity is referred to as a one screen in an application. So आप लोग WhatsApp use कर रहे हो, Facebook use कर रहे हो, it doesn't matter which application you are going to use. जो आपको स्क्रीन दिख रही है दैट इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी इन योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन. ठीक है, सो इट इज वेरी सिमिलर टू सिंगल विंडो ऑफ एनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन. जैसे कि अभी ये मैं लैपटॉप पे आपको दिखा रहा हूँ लेक्चर. सो दिस लैपटॉप विंडो इज द सेम थिंग जो आपको अभी बहुत सारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन हम लोग पीसी में भी या फिर लैपटॉप में भी रन कर सकते हैं. ठीक है, सो कहने का मुद्दा या फिर द थिंग इज the screen which you can see on your mobile device, that is all about your activity. So an Android app consists of one or more screens or activities. मतलब सिर्फ एक ही स्क्रीन है क्या? आप लोग जैसे ही फोन ऑन करते हो, so you can see the various applications in your mobile, right? Then if you choose particular application, जैसे कि आप लोग ने कैलेंडर ओपन किया, so you can see the calendar window. So there are a lot of activities, which is the bunch of activities in your. Each activity goes through various stages or a life cycle and is managed by activity stacks. Activity stacks मतलब stack मतलब क्या? एक bunch of the activities हम लोग बोल सकते हैं. So when a new activity starts, the previous one always remains below it. जैसे कि अभी ये मैं मोबाइल पे नहीं कर रहा हूँ because there is one issue while recording the lectures in mobile. So इसीलिए मैं डिनाई कर रहा हूँ और वो कंप्यूटर पे ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. बट मोबाइल पे आप लोग जैसे कि क्या बोलते हैं, रनिंग टास्क बहुत सारे होते हैं ना. आप लोग ने साइमल्टेनियसली व्हाट्सएप शुरू किया है, एम इंडिकेटर है, और कौन से एप्लीकेशन है आपके पास, स्नैपचैट आपने चालू किया है. ठीक है, सो जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप को मिनिमाइज करके एम इंडिकेटर ओपन कर रहे हो, सो वो व्हाट्सएप वैनिश्ड हो गया क्या? नहीं. Okay, WhatsApp is running in the background of your mobile application activity. ठीक है, so that is the point. So there are 4 stages of an activity. First step, if an activity is in the foreground, मतलब सामने है आपके of the screen, it is at the top of the stack, then it is said to be active or running. मतलब जो चालू है, जो foreground पे है, वो हमारा active है. That's it. मतलब बहुत ही simple fact है. This is usually the activity that the user is currently interacting with, and this is the मोस्ट करंट एक्टिविटी या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑन गोइंग एक्टिविटी इन योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन. द सेकेंड पॉइंट इज इफ एन एक्टिविटी हैज लॉस्ट फोकस. मतलब अभी मोबाइल पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट लॉस्ट फोकस मतलब आपने मिनिमाइज कर दिया and a non-full sized or transparent activity has focused on top of your activity. In such case, either another activity has higher position in multi-window mode or the activity itself is not focusable in the current window. Obviously, थोड़ा दिमाग या फिर आप मोबाइल में ही देख रहे हो तो अभी YouTube पे चालू है आपका मेरा लेक्चर, राइट? सो मिनिमाइज कर दो या फिर जो जो 3 टैब रहते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो मल्टी विंडोज हम लोग वहां पे देख सकते हैं. सो एट दैट टाइम एक एक्टिविटी डिफोकस हो जाती है या फिर जो फोकसेबल हम लोग करना चाहते हैं वो एक्टिविटी सामने आ जाती है. सो that is all about our second stage of activity. Then the third is if an activity is completely hidden, मतलब अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही. hidden मतलब क्या? छुप गई है वो. ठीक है, I cannot see. By another activity, it is stopped or hidden. ठीक है, so at this point we can say the activity is stopped or hidden.
it still retains all the information, and as it is and as its window is hidden, thus it will often be killed by the system when memory is needed elsewhere. So it doesn't mean the activity is completely stopped if the activity is in the hidden mode. जैसे कि आप लोग YouTube देख रहे हो, फिर भी आपको WhatsApp के मैसेज आ रहे हैं, राइट? सो क्या WhatsApp की एक्टिविटी हिडन मोड में है? You can indirectly access the WhatsApp activity simultaneously while you are watching the videos on YouTube. ठीक है? सो ये थर्ड जो स्टेज है वो वही बोल रहा है कि आप लोग उसे कंप्लीटली किल भी कर सकते हो बाय योर सेल्फ. आप लोग डायरेक्टली उसे स्टॉप कर सकते हो, उसे एलिमिनेट कर सकते हो, कि जैसे ही उसे एलिमिनेट करे जो उसके लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड था वो फ्री हो गया. ओके, एंड द लास्ट इज द सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी फ्रॉम मेमोरी बाय आइदर आस्किंग इट टू फिनिश, मतलब हम लोग उसे हटा देना, स्वाइप करके हटा देते हैं. ठीक है, सो हम लोग वो परमिशन भी देते कभी कभी कि बैक 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 करके डू यू रियली वांट टू एग्जिट दैट ऐप. ठीक है, सो वो क्या है, आस्किंग टू फिनिश और सिंपली आइदर आस्किंग टू फिनिश, मतलब वो बोल रहा है, परमिशन मांग रहा है कि फिनिश करे या ना करे, या फिर सिंपली किलिंग इट्स प्रोसेस, या फिर जो चालू है सिंपली स्वाइप करके हटा दो उसे. When it is displayed again to the user, it must be completely restarted and restored to its previous state. ठीक है, सो ये जो है ये है अपना एक्टिविटी लाइफ साइकिल इन एंड्रॉइड. ठीक है, okay, so for each stage Android provides us with a set of 7 methods. Okay, sorry, like on create, on start, on resume, ऐसे बहुत सारे मेथड है. ऑन क्रिएट मेथड हम लोग नॉर्मली जावा फाइल जब भी इनबिल्ट करते हैं तो ऑन क्रिएट मेथड बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है. सो सिमिलरली टू दैट ऑन क्रिएट मेथड, एंड्रॉइड प्रोवाइड्स 7 different methods that have their own significance for each stage in life cycle, right? So यहाँ पे देखो, activity life cycle is all about when the activity is launched and when the activity is going to be shut down. यहाँ पे देखो activity launched हो रही है और activity. Okay, so using on create method, we actually created one एक्टिविटी इन अवर ऑन क्रिएट, मतलब हम लोग चालू कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन चालू कर रहे हैं. दैट इज ऑल अबाउट द ऑन क्रिएट मेथड, जो बाय डिफॉल्ट जावा मेथड होती है ना. बाय डिफॉल्ट मतलब जैसे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट करते तो वो आती है, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल में मैंने बोला था कि आर इंस्टेंस करके रहते हैं बंडल, वो वाली फाइल. ठीक है, सो विच इज द बाय डिफॉल्ट. जैसे हम लोग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी ओपनिंग बाय डिफॉल्टली दिस मेथड ऑन क्रिएट. उसके बाद ऑन स्टार्ट है. स्टार्ट मतलब यहाँ पे हम लोग एक्चुअली, क्रिएट मतलब इंस्टेंस क्रिएट करना, स्टार्ट मतलब एक्चुअली हम लोग यूज कर रहे हैं वो एप्लीकेशन. ओके, उसके बाद ऑन स्टार्ट के टाइम पे ही हम लोग पॉज कर सकते हैं. ठीक है, वही मेथड को पॉज कर सकते हैं. ठीक है, सो वो पॉज की हुई मेथड हम लोग फिर से ऑन रिज्यूम से रिज्यूम करेंगे. ठीक है, नाउ रिज्यूम मतलब अभी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में. ओके, दिस इज द मेन the essential, the impactful activity like activity launched or shut down. वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रनिंग स्टेट में. ठीक है, सो पॉज किया तो वो पॉज हो जाएगी, एंड रिज्यूम किया सो दैट एक्टिविटी इज गोइंग टू बी रिज्यूम. ओके, सो ऑन पॉज मेथड में क्या है, एप्स विथ हायर प्रायोरिटी नीड मेमोरी. पॉज मतलब हम लोग ने उसे बैकग्राउंड में ढकेल, एंड करंटली वी आर यूजिंग द न्यू एप्लीकेशन, सो ऐप प्रोसेस किल्ड. ओके, सो अगर किल्ड मतलब पूरे उसे डिस्ट्रॉय ही कर दिया हम लोग ने रनिंग टास्क में से, सो फिर से ऑन क्रिएट होने वाली है. बट अगर नहीं, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं की, सो वो यूज रिटर्न्स टू द एक्टिविटी और वो रिज्यूम होने वाली है. मतलब आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे चले गए विदाउट डिस्ट्रॉइंग द यूट्यूब, एंड आफ्टर रीडिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग यूर व्हाट्सएप टास्क, यू कमिंग बैक टू द यूट्यूब पॉइंट. सो ये वाला फंक्शन है. बट अगर आपको मेरा लेक्चर बोरिंग लगा, आपको यूट्यूब अभी नहीं देखना है, व्हाट्सएप पे आपका इंपॉर्टेंट पर्सनल मैसेज आया है, ठीक है, और आप लोग चैटिंग कर रहे हैं, एंड यू डोंट वांट टू सी माय लेक्चर, और आप लोग ने यूट्यूब को डिस्ट्रॉय किया, तो ये क्या हुआ, ऐप प्रोसेस किल्ड, आपने मैन्युअली उसे किल्ड कर दिया. ठीक है, अदरवाइज दूसरी मेथड है, द एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल, मतलब अगर वो दिखाई नहीं दे रही, मतलब चालू ही है, आप लोग ने पूरा दिन भर उसे इस्तेमाल नहीं किया, दूसरे दिन
जब उसे यूज कर रहे हो, सो वो आप लोग ने बहुत टाइम से अगर वो उसे विजिबल नहीं किया, सो वो स्टॉप मेथड में चली जाएगी। मतलब बैकग्राउंड में व्हाट्सएप चल रहा है बट यू डिडेंट यूज like 24 hours या फिर more than 24 hours, so it automatically going on the on stop method, and या फिर आप लोग बैक 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 करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द एक्टिविटी इज फिनिशिंग फॉर बीइंग डिस्ट्रॉय बाय द सिस्टम। मतलब डू यू रियली वांट टू एग्जिट दिस ऐप एंड यू सिलेक्टेड यस फॉर दैट, ओके, सो द ऑन डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड एट दैट टाइम, ठीक है। ऑन रिस्टार्ट, यहाँ पे देखो लोग ने ऑन रिस्टार्ट भी है, यूजर रिटर्न टू द एक्टिविटी, स्टॉप किया यूजर नेविगेट्स टू द एक्टिविटी, मतलब चल नहीं रहा है फिर भी आप लोग ने ट्रबल शूट किया और आप लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हो, हाँ, एट दिस पॉइंट। बट वेन एवर यू डिस्ट्रॉय एप्लीकेशन, आप लोग हटाते हो या फिर एग्जिट करते हो, सो इट नेचुरली डेथ दैट, नेचुरली यू हैव किल्ड दैट सॉफ्टवेयर एक्टिविटी, ठीक है। सो दैट इज द सॉफ्टवेयर एक्टिविटी। सो देखते हैं वन बाय वन हर एक मेथड के बारे में। First is our on create method, so it is called when the activity is first created, okay, हम लोग ने activity create कर दी, so this is where all static work is done, like creating views, building data to list, etc etc. This method also provides a bundle create containing its previous frozen state if there was none. So यहाँ पे देखो एक जावा और एक कॉटलिन फाइल दी है, हाँ, यहाँ पे जावा है और एक कॉटलिन फाइल भी है। हम लोग जावा पे ही फोकस करेंगे। ये देखो जो मैंने बोला था ना, ऑन क्रिएट मेथड, सेव इंस्टेंस, जो आर डॉट इंस्टेंस वाला है, ठीक है। सो इससे क्या होने वाला है, मेथड क्रिएट होने वाली है। आफ्टर दैट ऑन स्टार्ट मेथड, सो इट इज इन्वोक्ड व्हेन द एक्टिविटी इज विजिबल टू द यूजर। अभी आप लोग ने व्हाट्सएप स्टार्ट किया, सो जैसे आप लोग व्हाट्सएप के एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, so that is our on create method, and whenever you are able to see the WhatsApp screen, your messaging screen, your home screen, so at that time on start method is running in the background, या फिर आप लोग वो on start method run कर रहे हैं। It is followed by only on resume if the activity is invoked from the background। मतलब आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो through YouTube and now you are going to the WhatsApp for checking your personal messages, so at that time ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होने वाला है, बट इन द रियल सेंस, इन द नेचुरल सेंस ऑन स्टार्ट मेथड ही हम लोग कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ऑन स्टार्ट मेथड, ओके, टोस्ट बनाया है और टोस्ट में फिर हम लोग वो मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऑन क्रिएट मेथड हम मैंने जैसे बोला, इट इज द बाय डिफॉल्ट मेथड, यू कैन नॉट चेंज, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर, क्योंकि ऑन क्रिएट से ही हम लोग एक्टिविटी क्रिएट करने वाले। इफ देर इज नो on create method in your android application, then you didn't able to, या फिर आप लोग वो application use कर ही नहीं सकते, आप लोग you cannot able to run this particular application, okay। so उसके बाद है on restart। on restart के बारे में भी पढ़ा था कि वो restart से क्या होगा। देखो सेम मैंने कॉन्टेक्स्ट पास की है बट द फंक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। रिस्टार्ट यहाँ पे नेचर ही समझना, कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं YouTube पे वीडियो देख रहा हूँ एंड सडनली मुझे बैंक एप्लीकेशन का मैसेज आ गया, ठीक है। सो मैं YouTube का वीडियो वैसे ही पॉज मोड पे छोड़ के मैं डायरेक्टली बैंक एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं फिर से YouTube पे आ रहा हूँ, जो मेरा वीडियो है वो वही मोड पे या फिर वो वही पॉइंट पे अटका हुआ है, हाँ। एंड इफ आई एम प्रेसिंग द रिज्यूम बटन, सो आई कैन वॉच द कंटेंट वेयर आई लेफ्ट ऑलरेडी। सो दॅट इज ऑल अबाउट द ऑन रिस्टार्ट मेथड। त्याच्यानंतर आहे ऑन रिज्यूम, ओके। ऑन रिज्यूम भी काइंड ऑफ सेम वर्क होगा, जो मैंने बोला कि यूट्यूब पे आप लोग रिज्यूम कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑन रिज्यूम मेथड। उसके बाद है ऑन पॉज मेथड, ओके। ऑन पॉज मतलब आपने वो एक्टिविटी पॉज करके रखी है, होल्ड किया है। जैसे कि सपोज आप लोग साइन अप कर रहे हो, सो साइन अप के टाइम आपको बोलते हैं कि एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल एड्रेस, ओके। सपोज इफ द एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट द बैंकिंग, वो पैन नंबर बोलेगा। एंड सपोज द क्या बोलेंगे, द लेंथ ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस इज टू लेंथी, सो हम लोग के पास अगर अभी बैंक डिटेल्स नाही आहे, ठीक आहे, मला बँकेचा अकाउंट नंबर माहिती नाही आणि मला ते ऍप्लिकेशन विचारतं टाकायला, सो ऑन दैट टाइम यू हैव टू, क्या था अपना, हाँ, ऑन पॉज मेथड। आप लोग पॉज कर सकते हो एंड आफ्टर गेटिंग द क्रेडेंशियल्स यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम द ऑन रिज्यूम मेथड। और लास्टली मेरा है ऑन स्टॉप। स्टॉप मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट रियली वांट टू कंटिन्यू विद दिस एप्लीकेशन, सो
आई वॉन्ट नॉट स्टॉप या फिर ये डिस्ट्रॉय मेथड भी सेम वर्क करेगा। सेम ही है, देखो ये क्रिएट मेथड वैसे